Good afternoon, everyone. I am Vedika Pawar, Vikasa member. Welcome you all the students on behalf of Vikasa of WIRCO 5CA session on tools and tips for being productive and etiquettes and professional behavior. I welcome our speaker, CA Ankit Kumar Jain, sir. Before, I would like to introduce before you all to our session speaker. It takes me immense pride to introduce our session speaker, CA Ankit Kumar Jain, sir. Sir is a practicing chartered accountant by profession in Mumbai for the past 10 years. Sir is a commerce graduate from Siddham College of Commerce and Economics, Mumbai, and holds a master's in fintech from SP Global School. As learning never stops, Sir is currently studying technology and fintech laws. His core areas of practice include GST and technology law. He is a regular speaker at various forums and business schools. Sir has also written a book on management. Sir loves technology and keeps himself updated. Sir believes in the motto, he who fears of being conquered is sure of defeat. Sir, over to you. Thank you, Vedika, for the wonderful introduction. I hope I'm audible and visible to everybody. Yes, sir. Okay. So I welcome all the dear students. So the point here to address this session is very important that we are trying to understand what productivity is. I assume because you guys have joined in this particular session, you know, and you're clear what productivity is about. Are you not able to handle the productivity or you're not able to produce the results what you require? So आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या चीज है and why it is important at this era of your life that you need to be very much productive. अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि we are in the digital world right now, absolutely digital world right now, and what we are facing the challenge is there is so much of data, so much of content, so much of knowledge sharing happening everywhere, and you have so much of distraction, so much of social media, Instagram, Facebook, whatever it may be, आपका आधा से ज्यादा टाइम उसके अंदर वेस्ट हो जाता है. I mean, if you go by research, in a day approximately a person checks his phone around say 200 odd times, and he spends around 2.5 hours or 2-3 hours of a daily schedule in for that particular time pass. Okay, so the point what I'm trying to tell you here is that आप जिस era के अंदर live कर रहे हो, the era what you guys are living in, here knowledge is important. I would not say that knowledge is not important, but what is important is being focused and showing the productive results to your principal as chartered accountant or to your colleagues or to your wherever you go in the life, right? This is something which you're talking about the lifespan. आज आप आर्टिकल हो, कल आप सीए बन जाओगे, आप खुद का ऑफिस स्टार्ट करोगे, आप या कहीं पे जॉब करोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोडक्टिव कैसे रहो, आपको वो चीज समझना है, राइट? नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, इट मींस आपके पास, मेरे पास, मुकेश अंबानी के पास, अनिल अंबानी के पास, सबके पास टाइम स्लॉट ओनली 24 आवर्स ही है. नाउ हाउ डू वी यूटिलाइज दिस 24 आवर्स इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर is what is all about productivity, right? And now बहुत बार क्या होता है, हम इतना सारा काम एक साथ ले लेते हैं and we actually lose on to our productivity. डे एंड में जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हमको पता चलता है हमने कुछ भी नहीं किया. और क्या होता है कि हमारे इतने डिस्ट्रैक्शंस है ना कि हमको एनालाइज भी नहीं होता है कि हमने टाइम कहाँ स्पेंड कर दिया है. सो एज वी ऑल इन द डिजिटल एरा, और यही हमारे साथ रहने वाला है अभी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑर्गेनाइज आवर सेल्फ, राइट? हम बहुत कुछ करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा. इवन वन पर्टिकुलर एक्टिविटी नीड्स हेल लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम आवर साइड. अगर हमने वो काम को नहीं अचीव किया, अगर हमने वो काम को नहीं सेटिस्फाई किया, तो हमको रात को नींद नहीं आएगा, दैट वी आर अनसेटिस्फाइड विथ व्हाट वी हैव डन एट द डे एंड. करेक्ट है? तो आज हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द फ्यू थिंग्स व्हिच यू शुड फोकस एज अ प्रोफेशनल. तो पहला चीज मैं आपको ये बोलूंगा, आप एक माइंडसेट लेके मेरे सेशन में अटेंड करना कि यू आर ऑलरेडी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो. नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस इज कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमसे बहुत सारे सीनियर्स हैं, वो हमसे बहुत नॉलेजेबल हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और हम कौन से स्टेज पे हैं, वी आर एट अ वेरी लो स्टेज. फॉरगेट ऑल दैट थिंग. आपको कोई भी काम आप जब भी कर रहे हो, आपको ये समझना है कि आई एम बेस्ट एट दैट वर्क. सेकेंड,
मैं जो काम करूंगा, जो मैं आउटपुट देने वाला हूं, भले ही मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 1 आवर एक्स्ट्रा लगे, 1 डे एक्स्ट्रा लगे, बट दैट आउटपुट शुड बी एब्सोल्युटली एरर फ्री, एब्सोल्युटली अप टू द मार्क। मैं उसको एक बार प्रूफ रीड, 2 बार प्रूफ रीड करे बिना मैं उसको आगे डिलीवर नहीं करने वाला हूँ। मेक दिस एज अ प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ। अगर आपने इस चीज को अप्लाई कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आप सक्सेस, you will reach success in a very short span of time. Now, the problem with we chartered accountants are that हमको ये आर्टिकलशिप के पीरियड में जाना पड़ता है, and we are into articles, we are into under the training, और वहां पे हमारा मोरल डाउन हो जाता है. Why? Because I have seen very less articles who are very aggressive, very passionate about learning, who are very enthusiastic about learning and trying to explore new things. But अभी क्या हो गया है कि आपका इतना प्रेशर रहता है कि आपको एग्जाम के लिए क्लासेस जाना है, आपको ऑफिस अटेंड करना है, आपको खुद का सेल्फ स्टडी करना है, एवरीथिंग इज डन, सो यू विल हैव टू मैनेज योर टाइम, यू विल हैव टू मैनेज योर प्रायोरिटीज। अगर आपने वो चीज नहीं किया, देन यू विल फॉल इन अ सूप और आपका आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने आर्टिकलशिप में क्या किया है, क्या सीखा है, एंड यू विल हैव नो क्लैरिटी आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या करना है। करेक्ट है? ये प्रॉब्लम 80-85% आर्टिकल्स लोग के साथ हो रहा है आज के डेट में, बिकॉज दे आर इन अ रैट रेस, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। करेक्ट? सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि so we're just trying to identify the problem, so that once we identify the problem, हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा lacking का है। And I assume that you guys have joined this session because आपको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है, या फिर आप आपका प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप मतलब आपको खुद को कहीं ना कहीं सेल्फ इंप्रूवमेंट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट। करेक्ट है? और आज के डेट में क्या हो गया है दैट जस्ट बाय स्टडिंग योर बुक्स, जस्ट बाय क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन, it is not going to give you a satisfaction, it is not going to give you success. लर्निंग कर्व आपको हमेशा बनाए रखना है, हर एक स्टेज में लाइफ में आपको सीखना है, किसी ना किसी से कुछ सीखना ही पड़ेगा आपको, राइट है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप किससे सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो। नाउ I will share certain tips and techniques which you should do. Uh, even as a article, even as a chartered accountant, I train to chartered accountants also. तो मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि बॉस हम क्यों लैक कर रहे हैं, we should understand why we are lacking. पहला चीज तो ये है कि हमको पता चलना चाहिए कि हम लैक क्यों कर रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि अगर हम लैक कर रहे हैं तो उसको डिस्ट्रैक्शंस को मैं कैसे अपनी लाइफ से बाहर करूं। करेक्ट है? ये चीज अगर समझ गए तो वेरी सिंपल बेसिक लॉजिक है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है या कोई भी नॉलेज नहीं है, इट इज ऑल एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड। जो आप यहाँ सोच रहे हो, जो आप यहाँ सोच रहे हो ना, वही होने वाला है। करेक्ट है? सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन, अगर आप कोई चीज पे एडिक्शन हो गए हो, राइट, और वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है, वुड लीड टू डेथ ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी। वो आपको कभी भी प्रोडक्टिव बनने ही नहीं देगा। करेक्ट है? अगर आप कोई एडिक्शन में अटक गए हो विच इज लीडिंग टू डिस्ट्रैक्शन, इट वुड लीड टू डेथ ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या हो गया दैट इफ सपोज यू आर स्टडिंग एज एन आर्टिकल, आपका एग्जाम लीव है, आप स्टडी कर रहे हो, आपने 10-15 मिनट के लिए पढ़ाई किया, देन सडनली यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय अ व्हाट्सएप मैसेज। आजकल टेलीग्राम बहुत चल रहा है एट अ स्टूडेंट लेवल। टेलीग्राम, इनॉर्मस डेटा, अननेसेसरी डेटा जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, राइट है? अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, यू लूज अराउंड योर 1 आवर 135 मिनट्स 45 मिनट्स, और आपको लगता है कि मैंने 1 घंटा पढ़ाई किया, बट अल्टीमेटली जब आप खुद इवैल्यूएट करोगे तो आपने 10 से 15 मिनट से ज्यादा का पढ़ाई नहीं किया। करेक्ट है? सो एनीथिंग विच यू एडिक्टेड टू डिस्ट्रैक्शन वुड लीड टू डेथ ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी। तो आप जो प्रोडक्टिविटी टाइम है आपके पास, जो टाइम है आपके पास बीइंग प्रोडक्टिव, बीइंग गिविंग योर बेस्ट शॉट, वो आपका टाइम चला जाएगा। सो प्लीज माय रिक्वेस्ट इज दैट आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसका एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट डाउन ऑल योर distractions, sorry, not attractions, list down all your distractions। लिस्ट डाउन ऑल डिस्ट्रैक्शंस, और जैसे ही आप डिस्ट्रैक्शंस को आप फेस करोगे, आपको समझ में आएगा कि ये मेरे डिस्ट्रैक्शंस है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ठीक है, ये मेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं। आई एम वाचिंग यूट्यूब, आई एम वाचिंग नेटफ्लिक्स, आई एम वाचिंग एन नंबर ऑफ गेम्स आई एम प्लेइंग, आई एम चिट चैटिंग टू मच ऑन द व्हाट्सएप और ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। फॉरगेट ऑल दिस, ठीक है? एक टाइम स्लॉट बना दो कि हाँ मुझे इस टाइम पे ही ये करना है। करेक्ट है? अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपका आधा से ज्यादा टाइम ये कंज्यूम कर लेगा। नाउ secondly, what I would like to say here is that focus,
being focused is more important than being intelligent, right? Now what do I mean when I say this, right? जब मैं ये चीज बात कर रहा हूँ कि focus is more important than being focus important है rather than being intelligence. Now why I say intelligence को मैं priority नहीं दे रहा हूँ, I mean I'm giving it a priority but focus को ज्यादा priority दे रहा हूँ. क्यों? Because आज के डेट में इंटेलिजेंस के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए इट इज फ्रीली और पेड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इजीली अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी ऑन दिस प्लैनेट, करेक्ट है? किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंटरनेट में जाएगा, गूगल में जाएगा और सर्च करेगा, उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. हमारा डर क्या बोलता है कि सर सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल है तो मुझे कोई काम क्यों देगा, या फिर हाउ कैन आई बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ, करेक्ट? इवन आई हैड दैट फियर, इवन आई हैड दैट फेलियर कि यार सब कुछ तो इंटरनेट पे अवेलेबल है तो क्यों कोई मेरे पास काम कराएगा, क्यों कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा, क्यों किसी को मैं ट्रेनिंग दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, करेक्ट है? बिकॉज इंटेलिजेंस आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है. आपके पास जितना डेटा चाहिए आपको मिल जाएगा, फ्री में अवेलेबल है. जितना डेटा फ्लो हो रहा है, ट्रस्ट मी, ये जो आज के डेट में डेटा फ्लो हो रहा है इसका 5 टाइम्स डेटा फ्लो होने वाला है इन द कमिंग 3 to 4 years. Imagine the amount of content that will be available on the internet. Now beating that challenge and growing in your career, growing in your life, आपको क्या चीज है जो स्किल आपको बनाएगा, that is what you have to do, right? तो अगर आपने उस स्किल को डेवलप किया then only you will stand out in your professional life or in any kind of your professional you want to do, any kind of business you want to do, any kind of articleship you want to do, right? अगर आप अच्छी जगह पे articleship कर रहे हो and you want that you perceive that you want to go join as a partner, तो आपका स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रगल आज से शुरू हो गया. यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू बी मोर डेडिकेटेड, यू नीड टू शो देम दैट ठीक है इंटेलिजेंस तो कोई बात नहीं है, आई कैन फाइंड आउट, आई कैन रिसर्च, आई कैन फाइंड आउट, बट आई एम फोकस्ड ऑन डूइंग माय वर्क. मैं क्लियर हूँ, मेरे थॉट्स क्लियर है कि मुझे ये काम इस तरीके से करना है, राइट है? सो फोकस 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 is the only thing which will help you grow in your life. अगर आप फोकस नहीं कर पाओगे then it is going to be bigger challenge for you in life, because मेरा सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आप फोकस हो तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे. डोंट ट्राई टू फेक. आप ये मत बताओ कि मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, मुझे टीडीएस भी आता है, मुझे जीएसटी भी आता है, मुझे आरओसी भी आता है, मुझे इनकम टैक्स भी आता है. आई डोंट नो एनीथिंग, आई जस्ट नो जीएसटी. मैं खाली जीएसटी पढ़ाता हूँ, जीएसटी ट्रेन करता हूँ, जीएसटी रिटर्न जीएसटी की प्रैक्टिस करता हूँ, करेक्ट है? Now I am a single person, I cannot absorb so much data into my head. जब मैं खुद की पर्सनल बात करता हूँ तो राइट है, सो मेरा भी लिमिटेशन है, करेक्ट है? सो इनिशियली आई यूज्ड टू फेक. I'll tell you very honestly, जब मैं शुरू शुरू में प्रैक्टिस में आया था, बट दोस टाइम्स वर डिफरेंट टाइम्स. 10 years बैक थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. आज के डेट में things are so dynamic, things are so demanding, things are so challenging कि आपको अगर एक भी काम आपने ढंग से कर लिया ना, you will feel satisfied at the end of the day. Because क्या हो गया है कि now people are saying कि सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया तो सीए के पास काम क्या रहेगा, नहीं रहेगा. इट इज नॉट एट ऑल दैट. अगर आप फोकस करके प्रिसाइजली अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर शेयर इन द मार्केट, करेक्ट है? अगर आप फोकस हो, आप प्रोफेशनली काम अच्छे से कर रहे हो तो आपको मिलेगा. सो माय थर्ड व्यू इज दैट डू व्हाट मैटर्स, डू नॉट डू फेक वर्क. फेक इट टिल यू मेक इट एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था पहले के जमाने में, आज के डेट में वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता है. क्यों नहीं चलता है? बिकॉज आप गूगल में जाके क्या सर्च करते हो? सपोज इफ यू वांट टू फाइंड फॉर आईडीटी, राइट है? आप सी फाइनल के स्टूडेंट, आपको फाइंड करना है कि आईडीटी में कौन फैकल्टी है, तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा जाके एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स आप टाइप करोगे गूगल के अंदर, आईडीटी सीए फाइनल, राइट है? नाउ द चैलेंज व्हाट हियर कम्स इज दैट इफ आई एम डूइंग टू मेनी थिंग्स एंड देन द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस इज दैट कि मेरे को ही नहीं पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ. जब मुझे ही नहीं पता कि मेरा कोर एरिया क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, हाउ एम आई गोइंग टू शोकेस दैट स्ट्रेंथ टू द ऑडियंस, हाउ एम आई गोइंग टू शोकेस दैट स्ट्रेंथ टू द गूगल? अगर मैं गूगल के लिए कीवर्ड्स नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, मैं खुद गूगल के लिए कुछ ब्रांड नहीं बन पा रहा हूँ, तो व्हाई वुड पीपल कम टू मी? सो do what matters to you and do not do fake work. Just keep this mantra in mind. I'm giving you few simple logical tips. सिंपल जो चीज मैंने सीखी है, जो चीज मेरे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है, राइट है? सो दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से लाइफस्टाइल को जीना है भाई. बिकॉज क्या हो गया ना, जितना ऑनलाइन चीजें जा रही है, एज अ प्रोफेशनल हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गया
कि सर ये तो ऑनलाइन है, आपको इसके लिए अपलोड करना है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, ये तो ऑनलाइन है, इसका इन्फॉर्मेशन तो इतना रेडिली अवेलेबल, गिव मी इन 5 minutes. How can you give so much information? How can you do so much activity in just a click of a button? It is not practically possible, right? So you should be clear that what you're communicating with the clients, with your peers, with your other articles, with your principals. आपको एक फोकस्ड वे से क्लैरिटी के साथ काम करना पड़ेगा. अगर आप अनक्लियर हो, then you will not be successful in any field of your life. Trust me on this. करेक्ट है? आपको कोई लड़की पसंद है तो यू शुड बी क्लियर कि ये मुझे पसंद है, क्यों नहीं पसंद है, राइट? बी वेरी क्लियर, डू नॉट फेक, डू नॉट ट्राई टू, आप अपने मन के अंदर कुछ, डोंट कैमोफ्लेज योर इमेज, राइट है? आपको अगर कुछ चीज पसंद है तो पसंद है, करो. एवरी करियर हैज अ स्कोप इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड सिनेरियो व्हाट वी आर लिविंग इट. If I always give one example, अगर मुझे वड़ा पाव बेचना है तो I can sell a वड़ा पाव at 10 rupees, or I can go to Taj and sell that वड़ा पाव at 500 rupees also. करेक्ट है ना? सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर मैं फोकस्ड हूँ कि मुझे वड़ा पाव ताज में ही बेचना है तो मैं ताज में ही जाके बेचूंगा. अगर मैं फोकस्ड हूँ कि मुझे वड़ा पाव स्टोर में जाके बेचना है तो मैं स्टोर में जाके बेचूंगा. करेक्ट है? सो आई नीड टू बी वेरी मच फोकस कि हाँ मेरे को वड़ा पाव, मुझे जीएसटी ही करना है. अब मैं ये सोचता हूँ कि जीएसटी के अंदर इतने सारे कंसल्टेंट है तो मेरा नंबर कहाँ से आएगा, राइट? सो आई विल हैव टू फोकस माई सेल्फ इन जीएसटी ऑल्सो कि मैं जीएसटी के अंदर क्या काम करने वाला हूँ, राइट है? सो आई वर्क ओनली प्योरली ऑन रिफंड्स का एस्पेक्ट. I work purely on ITC का aspect, right? So you need to focus. और एक पर्टिकुलर टॉपिक भी इतना इतना बड़ा है ना आज के डेट में, इतनी नीटी ग्रिटीज है, इतनी सारी डिटेलिंग है, इतने सारे आप, बिकॉज यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्टार्ट रीडिंग और पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, राइट है? हम क्या सोचते हैं ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, नहीं होता है, राइट? सो आई हैव मेड सर्टेन प्रोटोकॉल्स फॉर यू गाइस. आप इसको फॉलो करो, अंडरस्टैंड दिस प्रोटोकॉल्स. आई एक्सप्लेन दिस प्रोटोकॉल्स का बेसिक्स ऑल्सो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. दिस विल रियली हेल्प यू गाइस टू आइडेंटिफाई कि आप लाइफ में कहाँ पहुंच रहे हो, कहाँ नहीं पहुंचना. आज के डेट में सबसे बड़ा फियर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के माइंड में यही है कि देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन नाउ. ट्रस्ट मी, देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन नाउ. मेरे पेरेंट्स, सपोज इफ आई एम अपेयरिंग फॉर सीए फाइनल टुडे, my parents have a hope कि सीए बनते ही ये पूरी दुनियादारी चेंज कर देगा, he will have a lavish lifestyle, which is not the fact currently. As a student I know that इतना कंपटीशन है, इतना जमाना बदल गया है. आई नीड टू बी अपडेटेड, आई नीड टू बी फाइटिंग इन द कंपटीशन, राइट? पहले के जमाने में वन one particular area used to have one CA, one or two CA. आज के डेट में when you see you have 4 to 5 CAs in a particular family only, करेक्ट है? जब इतने सारे CAs हैं, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, इतना सारा नॉलेजेबल पीपल अवेलेबल है, उतना ही काम भी बढ़ गया है. बट द डिमांड ऑफ दैट वर्क इज सम एक्स्ट्रा स्किल्स व्हिच यू हैव टू डेवलप. नाउ दीज स्किल्स कैन बी योर द वे यू प्रोसेस योर वर्क, और द वे यू, मेंटल स्किल्स का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसके अंदर, अलॉन्ग विथ योर टेक्निकल स्किल्स, राइट है? अगर आप मेंटली बैलेंस्ड हो, आप मेंटली फोकस्ड हो, it will really help you to achieve what you want to, right? So I'll give one few protocols. You know what you mean protocols, right? Simple rules आपको follow करने हैं. I will give you few protocols which will help you identify कि आपको किस लेवल से आपको अपने आप को तैयार करना है, करेक्ट है? Now let us go and see. I would request you guys to please take a paper and pen with me. मैं आपको जो जो बोलता हूँ आप वो लिखते जाओ, correct? Whatever I tell you, please keep on writing. I will give you time to write because I do not want this session to be pure monotonous session. आप साथ में लिखते जाओ, साथ में करते हो. It's like more like a workshop which we are doing, trying to do over here, so that आपका जो 2 hours के बाद, 1.5 hours के बाद जब हम ये सेशन एंड करेंगे, you will be clear कि जो सेशन में मैंने समझा है उसका मेरे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, करेक्ट है? You will be clear that जो मेरे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, right? So now going back to into this, I'll take you through this. Okay, now what is the protocol which I like to share with you guys? Let me just take you to this protocol. First protocol which I'm going to share with you is that 90-91 rule, right? है 90-91 rule का मतलब क्या होता है, right? Just write down this rule in your notebook. Everybody's got the notebook and paper pen. Please, I'll give you 1 minute. Quickly go grab your notebook, grab your pen and come back to here. जल्दी आ जाओ. Then I will start again.
ओके, सो नाउ लेट अस क्विकली स्टार्ट। जो हम आगे बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि आपको एक 90-91 का रूल क्या बोलता है। ये रूल सिंपली ये बोलता है कि यू हैव टू डिवोट योर 90 डेज, राइट है। पहला 90 ये बोलता है, इट इज टॉकिंग अबाउट द 90 डेज। दूसरा 90 ये बोलता है कि एवरी डे यू हैव टू गिव 90 मिनट्स, राइट है। 90 days 90 minutes, only one task which is very 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 important for you. Now suppose as a student अगर आपका एग्जाम है तो you know that which is my difficult subject, तो you should make a note of that कि मेरा ये difficult subject है, इसको मुझे fear अगर overcome करना है then I will have to devote time into it, right है। आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे ये सब्जेक्ट में नहीं होगा मैं छोड़ दूंगा बाद में करूंगा। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट एनीथिंग। जैसे आपने प्रोक्रेस्टिनेट शुरू कर दिया ना, लाइफ विल बिकम अ हेल। नाउ व्हाट डू आई प्रोक्रेस्टिनेट? आज नहीं कल करता हूँ, कल नहीं परसों करता हूँ, देख लेंगे, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये सारे जो वर्ड्स है ना, इट इज गोइंग टू इट इज अ सिम्पटम वेयर यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग योर एक्टिविटीज। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज का जमाना बड़ा ही चैलेंजिंग है। आज का जो सिनेरियो है, इट इज वेरी मच, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन डिटर्मिनेशन। अगर आपने एक मिस्टेक की, यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी विच कैन टर्न यू इनटू मिलियनेयर। ट्रस्ट मी ऑन दिस, करेक्ट है। नाउ this is an opportunity for me to express myself in front of all you students, correct है। now this can be an opportunity for me somewhere or the other, right है। तो मेरे लिए जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज मैं कर रहा हूँ, if I'm focused, if I'm mentally relaxed, if I'm doing that stuff, it will help me give the best results, right? So 90-91 rule क्या बोलता है? In the next 90 days, focus on one area or opportunity for the first 90 minutes of the day. जैसे मेरा first 90 minutes of the day start होता है, the time when I start the day. Suppose if I'm starting my day at 8 o'clock or 8:30, right? I reach my office at 8:30. Now, from 8:30 to 10 o'clock, I know, मैं अपनी personal experience share करते रहा हूँ आप लोगों के साथ में, so that you can relate to this thing, right? I'll give you time to write also this now. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू इज दैट जब मैं आई वाज अ लेजी बम, ठीक है, मैं बहुत ही लेजी बम था, बट सम इंसिडेंट हैपेंड टू मी। आई गॉट अ मेंटर फॉर माई सेल्फ। ही मोटिवेटेड मी कि बॉस आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, दिस इज व्हाट यू आर लैकिंग एट, दिस इज व्हाट यू आर फेलिंग एट, राइट। सो व्हाट आई डिड वाज नाउ आई हैव मेड श्योर दैट आई रीच माय ऑफिस एट 8:30। मैं 8:30 को ऑफिस पहुंच जाता हूं, आई स्टार्ट माय वर्क। नाउ फ्रॉम 8:30 टू 10, जहां पे मुझे पता है कि I'll be best at my efficiency because मैं आराम से सो के उठा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ, then I won't get much of the phone calls because generally people start working at 10 o'clock or 9:45, 9:30. I will not get much of a phone call. My staff comes at 10 o'clock. So that 90 minutes is purely my 90 minutes. Nobody is going to distract me that 90 minutes, correct? So I make sure that on that 90 minutes, I keep my cell phone in the silent mode or airplane mode depending upon the work which I have. And then I am doing this rigorously for last 70 days मैंने complete कर लिया। Now what was my agenda of this particular 90 days? I'll share with you guys. I मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। I was a faculty with Institute of Chartered Accountants since 2010। जब मैंने CA क्लियर नहीं किया था, उसके पहले से मैं CA फाइनल को पढ़ाता था। So it was my passion to teach student, right? Now during the transition जब मैं प्रैक्टिस में आया, it was a demanding thing, बहुत सारा टाइम लगा मुझे, मैं हमेशा टीचिंग को मिस करता था। Now during this COVID, I got this opportunity to again relive my moments, to again relive my what I love. So मैंने डिसाइड किया कि I will again get into teaching। मैं GST पढ़ाऊंगा लोगों को, बच्चों को, and I made myself very clear कि मैं इसके लिए टाइम निकालूंगा। So this is my area of opportunity or my area of priority for this 90 days, correct है। तो मैं every day सुबह आता हूँ, I study GST, I prepare notes for GST, I do my bit of 90 minutes patiently without any disturbance, and this is the opportunity what I'm trying to capitalize on, correct है। So मेरे लिए 70 days का टारगेट फिनिश हो गया है, 20 mode, and I'm absolutely happy. Trust me, I'm absolutely happy. Why? Because मैंने वो चीज अचीव किया बिकॉज ऑफ माई फोकस। अगर मैं फोकस नहीं होता, अगर मैंने 90 मिनट्स एवरी डे नहीं दिए होते, आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू अचीव, और आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू
जो मैं आज पहुंचा हूँ आज जीएसटी में, आई शेयर विथ यू द डिटेल्स ऑल्सो, जो मैं वहां पहुंचा हूँ आई वुड हैव नॉट अचीव दैट स्टेज एट ऑल। मैं हमेशा सोचता ही रहता, ये कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, रात को कर लूंगा, दिन में कर लूंगा। नहीं होता, यू नीड टू डिवोट टाइम, एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम इन दिस लाइफ, राइट है। और टाइम इज ओनली लिमिटेड फैक्टर विच वी हैव इन लाइफ, करेक्ट। Now, the 90-minute day focus on one area or opportunity for first 90 day of the day. ये आपको करना ही पड़ेगा. It is a game changer in your life. So I would request you guys, I'll give you 2 minutes, right? I'll give you 2 minutes. Please write down one area or one opportunity or one focus or one fear which you want to get out of your life. Correct है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको या तो लाइफ से बाहर निकालनी है, आप कोई डरते हो, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डरते हो, आप एक पर्टिकुलर चीज करने से डरते हो, राइट, बीट एनीथिंग। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एजुकेटिव हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कोई अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हो, इट कैन बी एनीथिंग ऑफ योर लाइफ। आप अपने टेक अ नोटबुक, राइट ऑन दैट वन एरिया विच यू वांट टू रिगरसली वर्क, बी डिटरमिन्ड इन वर्क, जहां पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, जस्ट राइट वन एरिया। आई गिव यू 2 minutes का टाइम, प्लीज राइट डाउन। And the moment you finish writing it down, you can type in the chat box कि आपका ये हो गया है। But till then, do you want me to take a question? I don't mind, you can take a question. सर क्वेश्चन देखना है आपको? हाँ, क्वेश्चन कहाँ दिखेगा? So what is meant by fake word? I cannot hear you. मैंने वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं अभी, ऑटो वेबिनार का जो बाहर आता है ना, उसके अंदर आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो ऑप्शन आ रहा है। बस आप बंद करते टाइम ना एंड हाँ, मत हाँ, करना, लीव करना। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Okay, now I'm sure you guys have written what you want to achieve in your next 90 days. It can be health related, it can be education related, it can be profession related, it can be relationship related, it can be anything which is bothering you in your life, it is anything which is troubling in your life, it can be any dream which you want to achieve but you have not been able to achieve that, right? It can be anything in your life. मेरे लिए ये ड्रीम था कि मैं वापस से टीचिंग में आ जाऊं, मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करूं। सो आई हैव मेड 290 days का स्लॉट्स इन माय लाइफ, दैट फर्स्ट 90 minutes आफ्टर गेटिंग अप आई हैव टू डू एन रिगरस एक्सरसाइज विदाउट फेल, कमिटमेंट चाहिए, राइट है। सेकंड, I wanted to again start getting into teaching, which is my passion, so I did that also. So I have completed my 70 days out of it. तो कोविड में कुछ तो अच्छा करें, कुछ तो अलग करें, कुछ तो नया करें, that was my whole objective was, correct? Now this is what I would say कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये 90 डेज को फॉलो करना, राइट? द मोमेंट यू स्टार्ट फॉलोइंग, एक नोटबुक बना लो डेली का कि ये 90 डेज का मेरा शेड्यूल, ये 90 डेज मुझे यही काम करना है। मेक टेक अ 100-page नोटबुक, सी फॉलो ट्रेडिशनल मेथड, फॉलो ग्लोबल, आप इंटरनेट यूज करो, ट्रेडिशनल मेथड यूज करो, कुछ भी मेथड यूज करो, टेक अ नोटबुक, कीप राइटिंग। जब आप लिखते हो ना तो आपका माइंड स्टार्ट वर्किंग एंड यू स्टार्ट फोकसिंग मोर। नाउ सेकंड प्रोटोकॉल व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। आपको कंप्लीट फोकस रखना ही पड़ेगा। बी हार्ड टू रीच एट मोस्ट प्रोडक्टिव आवर ऑफ योर डे। जिस टाइम पे आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, एज एन आर्टिकल ऑल्सो आई वुड से, अगर आप बहुत, आपका डेडलाइन है, राइट है, you know that you have a deadline, you have to perform, you have to give your best when you're doing as an article, right? So please avoid being in touch with anybody, do not be, आप generally available मत हो जाओ लोगों को, restrict yourself, put yourself on an airplane, जो काम है उसको complete करो and then only you reach, right? Now people say, generally research say that 3.5 hours per day is spent on distraction. Can you imagine this? Even I used to do this. ये मुझे कब मालूम पड़ा? जब मैंने सेल्फ इवेल्युएट किया, राइट, कि मेरा कितना टाइम जा रहा है इसके अंदर, स्पेंड हो रहा है। द मोमेंट वन सेल रिंग्स, आई टेक अप अ कॉल, अच्छा ठीक है बोल यार, अच्छा ये प्रॉब्लम है, मेरा काम तो खत्म ही नहीं हो रहा है, मैं दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग गया हूँ, राइट? सो
At times it is very important for you guys to be selfish. At times it is very important for you guys to finish your first work first, be the most productive and then go and help people, right? अगर आप वो नहीं करोगे ना, आप ही सूप में फॉल करने वाले हो. Nobody else is going to फॉल. हम कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, आई एम अनलकी, आई एम मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, आई डू नॉट हैव द रिसोर्सेज. इट इज नथिंग लाइक दैट. इट इज ऑल मेंटल. आपकी सोच आपको बदलनी है, आपके तरीके आपको बदलने हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी के तरीके आपको बदलने हैं. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप प्रोडक्टिव हो ना लाइफ में, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल. करेक्ट है. नाउ व्हेन आई से दैट वन मोर थिंग, दैट जैसे अगर आप 3.5 घंटा आप दिन में स्पेंड करते हो, उसके साथ साथ अगर आपको रीबूट करके वापस काम में आना ना, इट टेक्स अराउंड 21 मिनट्स. तो आप समझो कि अगर आप दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट, 15 बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप एक तो ये 21 मिनट इंटू 10, 21 मिनट इंटू 10, 2.5 से 3 घंटे तो आप इसमें वेस्ट कर रहे हो, 2.5 से 3 घंटे आप अपने अदर एक्टिविटीज में डिस्ट्रैक्ट होके कर रहे हो, राइट? अब ये सब होने के बाद आपके पास टाइम कितना बचने वाला है कि जहां प्रोडक्टिव काम कर सको. करेक्ट है. सो यू नीड टू बी श्योर कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. नाउ live minimalistic for some days in a month, creative days go device free. I generally go one day in a week where I'm not reachable, where I'm not at all, I keep my cell phone away, I try to just go away from everything and I do what I want to do very creatively. मुझे क्या नया इनोवेशन लाना है, मुझे मेरे प्रोफेशन के अंदर क्या डेवलप करना है, मुझे मेरे ट्रेनिंग्स के अंदर क्या डेवलप करना है, मुझे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या काम करना है, राइट है. सो आई कीप माई सेल्फ इन टोटल फोकस. मुझे मेरे अराउंड सराउंडिंग में एक बबल बनाना है जहां पे आई एम नॉट रीचेबल टू एनीबडी सो इजीली. Second, I know that I am going very minimalistic with less of distractions and devote से आज के डेट में आपके लेवल पे I would say devote at least 3 hours in a week's time where you go absolutely zero phone, absolutely zero internet, sit with yourself, write down your thoughts. आपको क्या क्रिएटिविटी बिल्ड करना है, आपको क्या न्यूनेस लाना है आपके लाइफ में, आपको किस तरीके से आपको डेवलप करना है so that you stand out of the audience, right है. Because आप जो परफॉर्म करोगे ना वही दिखने वाला, जो दिखता है ना वही दिखता है. करेक्ट है. जिस तरीके से आप परफॉर्म करोगे ना, इट इज नॉट, आप पेपर लेके भी आप बोल सकते हो कि ये मेरा स्पीच है, मेरे को बोलना है, बट वो स्पीच का तैयारी कितना है, वो स्पीच का डिलीवरी कितना है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट है. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके थॉट्स क्या है, आप उसको कैसे विजुअलाइज कर रहे हो, आप कैसे बताते हो लोगों को. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने पेपर नहीं लिया उसके बिना स्पीच बोला तो ही आप सक्सेसफुल हो, राइट है. इट इज हाउ यू कन्वे योर थॉट्स, इट इज हाउ यू कन्वे योर आइडिया, राइट. आज के डेट में सब कुछ बिकता है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको अगर वड़ा पाव बेचना है आप 10 रुपए में स्टॉल पे भी जाके बेच सकते हो, 500 रुपए में ताज में जाके बेच सकते हो. ट्रस्ट मी, आपका थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. नाउ थर्ड वेरी 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 इफेक्टिव टूल विच आई वांट टू टेल यू, हम लोग किस तरह के लोगों से सराउंडेड हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर वी सराउंडेड विद गुड क्वालिटी पीपल और नॉट, राइट है. हम अगर अपने आप को डीमोटिवेटेड समझते हैं, मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, तो मैं मेरे सुपीरियर से कैसे बात करूं, हूँ सक्सेसफुल पर्सन में उससे कैसे बात करूं, देन माई लाइफ इज नेवर गोइंग टू चेंज. मैं हमेशा अपने आप को नेगेटिव सोचूंगा. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज what I've seen currently in lot of students, lot of professionals also, कि उनको ये डीमोटिवेशन फैक्टर है कि यार मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा हूँ मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बिकॉज योर सराउंडिंग, योर peers with whom you're sitting, the peers with whom you're spending maximum time is not the kind of people which you should spend your time with. See, आज के डेट में हमारा लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो गया, राइट, एंड एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट, आप ऑन द गो हो एवरी टाइम. So it is very important that you choose your peer group really very well. Correct. That is the third mantra which I like to share with you. Choose your peer group really very well. This is just the foundation which I'm setting up for you guys so that you get completely focused. Then we'll be doing on workshop also कि हमारा क्या area है क्या नहीं है. We'll be doing one sheet also together with you. Correct. Now बेसिकली ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हम जिस तरह के लोगों को देखते हैं ना, वही तरीका का हम काम, मॉडल ऑफ बिहेवियर हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट. सो वी मॉडल द बिहेवियर ऑफ द डोमिनेंट पीपल. अगर हमारे घर में सपोज इट्स अ जॉइंट फैमिली, राइट, इफ इट्स अ जॉइंट फैमिली, then what happens is that the person who is dominant in nature, suppose my father is very particular in particular thing, तो मैं वही चीज को फॉलो करूंगा, मेरा बिहेवियरल साइंस बोलेगा कि यार आपको वही चीज को फॉलो करना, राइट है. सो just write down one thing in your notebook कि आप generally just evaluate yourself right now. I'll give you 2 minutes का time.
आपके सराउंडिंग में ऐसे कौन से लोग हैं जिनका बिहेवियर को आप रेप्लिकेट करते हो? राइट इट डाउन राइट नाउ. लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन आवरसेल्फ, लेट्स स्टार्ट इवैल्यूएटिंग, लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग आवरसेल्फ. करेक्ट है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप आज के डेट में मॉडल कर रहे हो या आप उनको कॉपी कर रहे हो? तो आपने कभी सोचा नहीं होगा. सो आई विल गिव यू टाइम फॉर 2 मिनट्स. राइट है? सो so I'll give you time for 2 minutes. So just start doing this. Correct? I at times copy my father's behavior, which is at times wrong, which is at times correct also. If you have done writing it, please mention in the question box that you have done writing it. कि आप किसको replicate करते हो आपके peer group में. It can be your family, it can be your friends, it can be your principal. Is it an eye opener for you? आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो लाइफ में? Now, next question is, do you want to be like that person whom you are following? Understand that first. क्या आप उनके जैसा बनना चाहते हो जिनको आप फॉलो कर रहे हो? अगर yes है तो yes लिखो चैट बॉक्स में everybody, अगर no है तो no लिखो everybody in the chat box. So I'm getting a mixed review जहां पे लोग ये बोलते हैं कि मुझे उनको करना है उनको नहीं फॉलो करना है. राइट है? So this is what is just an evaluation which we are going to do over here. राइट है? And this will help you understanding कि आपको क्या करना है नहीं करना है. राइट? Now moving next. So basically हम क्या होते हैं, जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं उसके हम विक्टिम हो जाते हैं. You will be victimized basically. आप एक विक्टिम बन जाओगे उनके, आप उनके हिसाब से आप उनका विक्टिम बन जाओगे. जो वो करते हैं, जो उनका एटीट्यूड होता है वैसे करोगे. Lot of time what happens is that if I am stuck up somewhere, right, and if I want to go a different strategy, अगर मुझे कोई different strategy use करना है, so मैं क्या सोचता हूँ कि यार मेरे एक पर्टिकुलर जो मेंटर है, अगर वो मेरी जगह पे होते तो वो कैसे बिहेव करते. राइट? इट विल हेल्प यू सॉल्व लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं होने वाला है. राइट? तो अगर आप मीडियोकर परफॉर्मर्स के साथ हो, यू विल बी ए मीडियोकर पर्सन. अगर आप गॉसिप डूअर्स के साथ हो, जो दिन भर गॉसिप ही करते रहते हैं, यू विल एंड अप डूइंग गॉसिपिंग. सो वी पिक अप द इमोशंस ऑफ द पीपल हु आर अराउंड अस. राइट है? तो हम उनके इमोशंस को पिकअप करते हैं जो अराउंड अस हैं. सो बी अराउंड व्हाट. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियसली एक मिरर इमेज क्रिएट करते हैं. वी आर नॉट डूइंग इट इंटेंशनली. सबकॉन्शियस माइंड हमारा पीछे काम करता है, which is just replicating the mirror image of the people we are around with. Correct है? So we have to pick up, so we pick up on the emotions of the people who are around us. So be around what inspired people. आप ऐसे लोगों के पास जाओ who is talking always positive. So right, so like my mom, if I talk about my mom, if I talk about my mom, she is very inspiring. कुछ भी प्रॉब्लम हो, there were times when we had no money to eat food also. हम लोग वड़ा पाव रह के भी हम लोग ने लाइफ निकाला है. So at that particular time also she was very motivated, she was very inspiring. She used to inspire me every day. अंकित बेटा ये करना है, ये करना है, ये करना है. So she is one of an inspiration for me. Right? Be around the people who want to do great work. आप उन लोगों से उठना बैठना शुरू करो जिनको बहुत काम करना है, who are not cribbing about anything. Right? Be with people who are confident, be with people who are more focused, who love to take challenges. तो आपका नेचर वैसे बनेगा. People who want to be ultra productive. आपके सर्कल में कोई तो कोई ऐसा बंदा होगा who is very successful और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों सक्सेसफुल है. Be with him, spend time with him, make relationship with him, develop relationship with him. Be with an innovator who thinks differently, who performs differently, who succeeds in different stuff, right? So and he basically relentlessly optimizing their work creativity. So allow you to adopt their energy and mindset. So if you start living with these kind of people now, you will start adopting their energy, their mindset. How do they do things? How do they behave in a different situation, right? Now we give a lot of time an example that MS Dhoni is a person who takes the decision very differently. Correct? Now why is he able to do that thing differently? Start analyzing his thoughts, start analyzing what he's doing. Correct? तभी आपको समझ में आएगा कि कौन है. Now I'll give you 2 more minutes. ऐसा कौन सा person है who has these kind of qualities
who you think you should be with them and you're not with them. Give me one name in writing. Write the name. Write the chat box में आप नाम लिखो. आपको ऐसे कौन से पर्सन से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. Please write down the chat box quickly. Open up your heart back. So it is basically, it's an informal session. Please open up your heart. Get out of your comfort zone. Please write down the name whom you want to be. He can be your principal, he can be your sister, he can be your brother, your senior, your article. You can learn from your article also. Somebody has written PM Modi, somebody has written Mohammad Siraj, my senior colleague. So right. So now you have to see कि आप उनको कैसे follow कर रहे हो. आप उनको कैसे follow कर रहे हो. That is what you have to see now. Are you in good relationship with him? Are you learning every day from him? So I'll give you one tip. If he's a person who's in reach with you, right? If he's a person who's in reach with you, please make it a habit that you send him a message every day stating that, sir, this is what I've learned from you today, and I'm really happy that I've learned this from you. It can be emotional, it can be physical, it can be qualitative, it can be education, it can be anything. Can you do this thing? Now, Mukti is a question how to find such people. That is an art you have to start developing. आपको ढूंढना पड़ेगा. Now, because you have got that knack कि आपको क्या ढूंढना है लाइफ में, then you can start finding such people, right? अभी तक आपको पता नहीं था कि ऐसा कुछ thought process होता है, correct? Now you know that you have to find such kind of people, be with the right company, then only now you'll understand that कि आपको कहाँ पे जाना है, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है. टाइम इज वेरी लिमिटेड. ट्रस्ट मी, टाइम इज वेरी लिमिटेड. आपको आपके बच्चों, मतलब फॉर मी, आई हैव टू गिव टाइम फॉर माय किड्स, आई हैव टू गिव टाइम फॉर माय वाइफ, आई हैव टू गिव टाइम फॉर माय पेरेंट्स, आई हैव टू गिव टाइम फॉर एवरीबॉडी, राइट है. now if you've identified the person and if he's reachable to you, I will request you, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप रीच नहीं कर सकते, लाइक राइटिंग पीएम मोदी और एपीजे अब्दुल कलाम, दैट इज वन ऑप्शन. ट्राई टू फाइंड, आप उनके साथ उठ बैठ तो सकते नहीं हो. Try to find out one more person in your circle with whom you would like, who is more successful than you. Okay, now don't think कि मेरे को उनको रहना नहीं. Try to find out one person from your phone book who is more successful to you and whom you are reachable. Write that name right now. जिन्होंने भी लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भी लिखा है कि आप इलॉन मस्क और मोदी जी, वो whoever may be, right? Write down one name from the phone book. Write down one name from the phone book whom you are accessible to. Quickly do that. Write the name. Quickly write the name on the chat box, please. See, let's make it an interactive session. तो मजा आएगा, नहीं तो बोर हो जाएंगे यार. Even I feel bored if it is not happening this way. नाम लिखो quickly. Write down the name. I'm waiting, guys. We have a lot to cover. ज्ञान देना is easy, but उसको implement करना very important है. So I want you to start implementing things. खाली सुन के जाओगे कोई फायदा नहीं है. Guys, I want the names quickly. Okay, so now I have got certain names. I'll give you 2 more minutes. Type a message right now. Don't be hesitant. Type a message right now to them, thanking them that what you have learned from them. Right now, do it right now. Don't hesitate. So Pranjal, your question is that can't we be around the negative people who inspire us to do more work?
I don't know. I mean, it depends upon individual to individual. Everybody has a different ideology of working. So I would not say that मेरा method right है, मेरा method wrong है. Everybody has their own thought process. Everybody has their own mindset. So it is absolutely okay, right? So आपको लगता है कि आप उनके साथ रह के ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हो, then you can do that. It is not कि यही मेथड आपको फॉलो करना है. Everybody has their own choice, correct? Now, have you guys written the message or not? एक मैसेज मेरे को भेजो. You want my number? 9699680721. I'll write down my number here. एक मैसेज मेरे को भेजो quickly. I want to know how many people are actually active here. This is my number. See Ankit Jain. Quickly send me a message. And send the same message to me whom you're sending it to that person, so that I know whom you're sending that message to और आपने क्या लिख के भेजा है. Quickly do it fast. This is an impromptu session. I have not planned कि इस तरीके से करूंगा, इस तरीके से नहीं करूंगा. This kind of session I do it very impromptu, depending upon the crowd which I have, depending upon the response they give you. So the better you respond to me, the better I'll be able to deliver to you guys. Right? This is something which I do out of my passion, out of my hobby. Right? Quick, boss. Quick, fast. Don't waste your time. इतना सोचो मत, इतना वो मत हो या डोंट बी हेजिटेंट. लाइफ इज वेरी सिंपल एंड शॉर्ट. एंजॉय कर लो जितना करना है. बार बार ये मौका नहीं मिलेगा. Okay, I've started getting messages. I want you to send me that message which you are going to send to your colleague or to the person whom you want to be with. वो मैसेज सेम टू सेम मेरे को भेजो अभी का अभी. This kind of workshop you might have never done in your life. और मैंने भी मतलब I would tell you that this is something which is very close to my heart because I've been through that journey, so that I want people to get out of that zone of comfort कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो यही करूंगा. Right? Don't be into that zone. आपको आपके challenges खुद ही solve करने पड़ेंगे, कोई भी नहीं solve कर पाएगा. There can be different inspired at every stage of life, no problem at all. It's absolutely fine. चलो. So I want to read that message जो आप आपके उस बंदे को भेजने वाले हो जिससे आप इंस्पायर हो. मेरे को अभी तक वो मैसेज नहीं मिला है. एक जन ने आया है, उसने लिखा है थैंक यू सर फॉर टीचिंग मी इनकम टैक्स सो वेल. आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट पर्सन यू आर डूइंग इट. गुड. सो आपने वो मैसेज भेज दिया उनको. रिप्लाई यस और नो इन द चैट बॉक्स. जिसको जिसको मैसेज डेडिकेटेड था आपने उनको मैसेज भेज दिया. Good. Now wait for the response and see the magic it works for you, right? This will give you an opportunity to spend some more time with them. Prakhar, please send it right now. Gautam, you have sent it to that particular person. All the best. I'm very sure that this response will change your life. Second, Prakhar, please send it. Please send it. Don't hesitate. Payal, good, you have sent it. I'm really happy for you. Okay, I'll be replying to your messages also after I finish this session. Okay, पायल ने भेज दिया है, ज्योत्सना ने भेज दिया है, आयुषी ने भेज दिया है. Thank you. Anybody else who wants some more time to spend, write a message. Prakhar, you have sent it. Very good. Sushma Kumari sent.
I missed this one. What is it we have to send and to whom? Sanjay Hakru, let it be later आप करेंगे. Yes, I have sent. Geetika Goel. Ocean Saini sent. Good. Now everybody has done this, so please get back to the work. अब हम जो आगे करना है हम आगे करते हैं. You have sent it. I'm really happy that you are sincerely following my words. Thank you for giving me this opportunity to at least guide you and give you some inspiration in life to do what you want to do in life. I am very happy. My session is successful session. I am happy with myself now. Okay. Now let us move ahead and take it forward from here. ये सब कोई आपको बताएगा नहीं, राइट? इट इज ऑल बेसिकली आपको खुद को ही करना पड़ता है, खुद को ही समझना पड़ता है, राइट? नाउ लर्न मिनिमलिज्म. मैंने बार बार बोला है कि आप ज्यादा दिखावे में मत जाओ. लर्न मिनिमलिज्म. सीक्रेट टू बीइंग अ जीनियस इज बीइंग नॉट बीइंग कॉम्प्लेक्स बट इट इज अ सिंप्लिसिटी विद व्हाट यू हैव डन, राइट? आपने जो भी इंस्टेंटली मैसेज भेजा है ना, इट इज द सिंपलेस्ट थिंग व्हाट यू कुड हैव डन इन लाइफ, करेक्ट है? आपने सिंपली वो मैसेज उनको भेज दिया, राइट? सो डू नॉट, सो बेसिकली डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग, डू नॉट कॉम्प्लेक्स थिंग, राइट? आपने सिंपली वो चीज उनको भेज दी. नाउ जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट. ट्रस्ट मी, यू विल बी अमेज्ड बाय दिस रिजल्ट. डू नॉट ट्राई टू अचीव टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम. बहुत सारी चीजों को एक साथ मत करो. कीप योर लाइफ सिंपल, कीप योर थिंग वेरी रिस्ट्रिक्टेड. बिकॉज मैं बार बार बोलता हूँ, मैं हर लोगों को बोलता हूँ कि आज के डेट में लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग. मेरे से तो मल्टीटास्किंग नहीं होता है. आई कैन नॉट डू टू और मोर थिंग्स एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मैं दो ही काम कर सकता हूँ या तीन ही काम ऐसा कर सकता हूँ. उसके अंदर भी मेरे को क्या होता है कि आई डू वन थिंग विच रिक्वायर्स मोर ऑफ माई टाइम एंड एनर्जी एंड समथिंग अदर देन दैट विच रिक्वायर्स लेस ऑफ माई टाइम एंड एनर्जी, राइट? इससे मेरा अटेंशन का स्पैन कम चाहिए होता है. One second, there's some question which I want to answer, I feel. Okay, done. Now, राइट है? सो बी वेरी मिनिमलिस्टिक. ट्राई टू अचीव फ्यू थिंग एट अ टाइम. अगर आपने सोचा है कि मुझे सपोज इफ एम आर्टिकल और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इस टाइम पे 10 क्लाइंट को हैंडल करना, राइट? इफ एम इसी बेसिकली क्या होना है, इट्स ऑल पर्सनल नेचर. कोई आर्टिकल होता है बोलता है कि मेरे को एक ही क्लाइंट पे काम करना है, नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग. कोई आर्टिकल होता है मोर एग्रेसिव, ही वांट्स टू डू मोर वर्क मोर वर्क मोर वर्क. तो हर एक आदमी का नेचर अलग अलग है. तो आपको आपका नेचर समझना है पहले. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वेरी वेल. जब तक आप सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करोगे ना, यू विल ऑलवेज गो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड. मेरा नेचर ऐसा है कि मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता हूँ, राइट है? देयर आर पीपल हु डू मल्टीटास्किंग. मेरे से वो काम नहीं होता है. सो आई हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि मेरे से मल्टीटास्किंग नहीं होगा. मैं साल में 4 ही प्रोजेक्ट करूंगा, 5 ही प्रोजेक्ट करूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ. बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट नीड्स माय डेडिकेशन, माय डिवोशन, माय टाइम. उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ. दैट इज माय नेचर, राइट? सो आई हैव आइडेंटिफाइड माय मेरा विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मैं यही काम कर सकता हूँ, करेक्ट है? दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ इंडिविजुअली कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेसेस क्या है. ये हम कभी करते ही नहीं है लाइफ में, करेक्ट है? दिस इज व्हाट इज देयर फ्रॉम द पर्सनल पर्सपेक्टिव व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ एज अ स्टूडेंट व्हेन आई टॉक टू यू गाइस, लेट मी टेक यू टू द स्टूडेंट लेवल आल्सो. कि अगर आप एज अ स्टूडेंट को, आपको टाइम मैनेज इज द ओनली की व्हिच यू हैव टू फॉलो, राइट? आपको एक टाइम मैनेजमेंट का फंडा पता होना चाहिए, तभी आप जाके अपने आप को, अपनी लाइफ को चार्ज पे रख सकते हो, राइट? टेकिंग चार्ज एंड कंट्रोल ऑफ योर टाइम. आपका टाइम आपके हाथ में है, कोई आपसे आपका टाइम छीन नहीं सकता है. ओनली थिंग व्हाट यू हैव विद यू इज द टाइम, राइट है? Now, how well you utilize your time is the important key. That is what you have to understand. अगर आपने ये चीज समझ लिया, then you'll be successful in life. Now, मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूँ आपको, इस टाइम पे क्यों बोल रहा हूँ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या हो गया ना, द कॉम्पिटिशन इज सो इनॉर्मस कि आपको लगता है कि यार मैं तो प्रोफेशनल नहीं हुआ अभी तक, ये सब ज्ञान मुझे क्यों दे रहे हैं अंकित सर? बट द फैक्ट इज कि हर एक बंदा, आज आप देखोगे ना, इफ यू गो ऑन टू यूट्यूब, you start searching YouTube, you will see a 5 years girl also doing a big business in YouTube, right है? अब वो कैसे कर रही है? You go on any field, आपको दिखेगा 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 21 साल का बच्चा, he is doing brilliant job. Brilliant means brilliant job. Why? Because he has taken control over his time, right? So do not ever underestimate yourself. हमारा प्रॉब्लम लाइफ में ये होता है कि हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं. We stop loving ourselves, we start cursing ourselves. और जैसे ही हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, और जब हम खुद को खुद पसंद नहीं करेंगे तो लोग हमको पसंद क्यों करेंगे? Do you guys agree with this or not? Do you underestimate yourself? Yes or no? Write it in the chat box. Do you underestimate yourself? Yes or no? I want an answer quickly.
ये हमारा प्रॉब्लम है। सी इट्स ए लर्निंग कर्व। आप कुछ भी चीज सब कुछ सीख के नहीं आ सकते हो। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। मैं आई टेल यू वन थिंग वेरी वेरी, मैं आपको चीज बताऊंगा। आई टेल यू लेटर, ओके, नॉट राइट नाउ, आफ्टर द सेशन आई टेल यू द होल स्टोरी अबाउट इट, राइट नाउ। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, और जब मैं खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं कि मुझे जीएसटी नहीं आता है, मुझे कॉस्टिंग नहीं आता है, मुझे एफएम नहीं आता है, देन हाउ एम आई गोइंग टू फेस दैट चैलेंज? मैं खुद कैसे पढ़ पाऊंगा? जब मैं खुद नर्वस हूं तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? सो यू हैव टू टेक दैट फियर आउट। वो फियर आउट करने के लिए सिंपली फॉलो द 90-91 का रूल। आप चुपचाप वो रूल को फॉलो करो, यू विल बी आउट ऑफ द फियर। जैसे आज आपका एक फियर टूटा है कि आई हाउ कैन आई से थैंक यू टू द पर्सन हुम आई हैव लर्नड सो मच थिंग फ्रॉम, आपका वो फियर टूटा कि नहीं टूटा? किपलाइन द रेसबॉक, फियर लॉस्ट। अगर आपका फियर टूटा है आज, दैट यू कैन कम्युनिकेट विद समबडी, राइट इन द चैट बॉक्स फियर लॉस्ट, स्पेसिफिकली राइट फियर लॉस्ट। सी हम इतना वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, इतना व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन जो काम का मैसेज है वो कभी जिंदगी में नहीं करते हैं। ओके, बहुत जनों का फेयर लॉस्ट हो गया, बहुत जनों का फेयर लॉस्ट अभी तक नहीं हुआ है। दत्ता प्रसाद, आई फील फियर लॉस्ट एंड फील फ्री नाउ, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बट ये आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, राइट? मेरे 2 घंटे के ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। दिस हैज टू बिकम अ प्रैक्टिस इन योर लाइफ। Shruti, I have a fear that I won't be able to learn much during articles. Don't learn much. Stick to one thing. Do a mastery in that. Simple. आपको अगर समझो कि आपको आपके ऑफिस में काम दे दिया गया है कि आपको सिर्फ आरओसी फाइलिंग करना है, इतना मास्टर बन जाओ आरओसी फाइलिंग के अंदर, कोई भी किधर से कुछ भी उठा के पूछो, आपको हो जाएगा। Payal, I'm absolutely happy with you that you never had the fear of telling the person whom you have learned from. Brilliant. I would say great attitude. Keep it up. Keep this attitude always in your life. I'm really appreciating Payal with you. I would love to be with a person like Payal who is good at communication, who is good at मैं उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहूंगा, because this will help develop me also. मैं भी बहुत कुछ सीखने वाला हूँ आप लोगों से, करेक्ट है? Now done. So let's move forward. Now as a student जब मैं बात करता हूँ आपसे, एज ए स्टूडेंट जब मैं बात करूंगा आपसे, तो क्या होता है कि वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ अर टाइम, हमको पता ही नहीं चलता है कि मेरा टाइम कहाँ गया है, मेरा टाइम कहाँ चला गया है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, करेक्ट है? राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन योर टाइम लॉग। आपको एक प्रैक्टिस डालना पड़ेगा दैट यू ट्रैक योर टाइम टिपिकली एवरी डे। आप सपोज माई एग्जाम्स आर नियरिंग, राइट? आई हैव अ 3 months का 4 months का स्टडी लीव। नाउ इफ आई हैव अ स्टडी लीव, कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, राइट है? पहला दिन मैं प्लानिंग करूंगा, दूसरा दिन मैं प्लानिंग करूंगा क्या करना है नहीं करना, थर्ड डे से मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाई करना। मैंने अलॉट किया कि मैं 16 आवर्स पढ़ूंगा, 14 आवर्स पढ़ूंगा। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं 10 मिनट पढ़ता हूँ, 2 घंटा वीडियोस देखने चले जाता हूँ। यूट्यूब में इतना कंटेंट है, किसका वीडियो देखूं मेरे को पता ही नहीं चल रहा है अभी, राइट है? सो प्लान एवरीथिंग, ट्रैक योर टाइम डेली बेसिस पे। आपको हफ्ता भर लगेगा आपको समझने के लिए कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, where am I wasting my time? So track your time. There are certain apps which are available on the mobile phone which you can download. I use generally Clockify करके एक ऐप होता है, मैं वो यूज करता हूँ, which will help me analyze कि बॉस मुझे कितना टाइम किधर देना है। तो तीसरे दिन का मेरे को अंदर गिल्टनेस फील होता है कि यार मैंने कितना टाइम अननेसेसरी वेस्ट कर दिया है। टाइम इज मनी, ट्रस्ट मी, टाइम इज मनी। हम प्रोफेशंस के लिए कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। अवर टाइम इज अवर मनी। क्लियर है? बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। नाउ व्हेन आई से कि ट्रैक योर टाइम, तो आपको आप खुद को आंसरेबल हो, ना ही आप मेरे को आंसरेबल हो, ना ही आपके फादर को आंसरेबल, ना ही आपके पेरेंट को आंसरेबल, ना ही आपके बॉयफ्रेंड को आंसरेबल हो, ना ही आपके गर्लफ्रेंड को आंसरेबल हो, करेक्ट है? यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ। अगर आप खुद के साथ सही हो तो आप सक्सेस टेस्ट करोगे।
अगर आप सही नहीं हो तो आप कभी लाइफ में सक्सेस टेस्ट नहीं करोगे, मार्क माय वर्ड्स, राइट है। इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ यू विल डेफिनेटली टेस्ट सक्सेस, करेक्ट। सो आई विल टेक यू द क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन आंसर है मैं लेता हूं साथ में एक साथ। सो लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट्स नाउ। सेट गोल्स एंड प्रायोरिटीज। आपको आपके नाउ स्टडी, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, राइट। सो व्हेन यू आर ट्रैकिंग द शीट, आप करेक्ट डिटेल भरो कि मैं अगर पढ़ने बैठा हूँ 3 घंटे के लिए तो उसमें मैंने कितना टाइम पे नेटफ्लिक्स देखा है या यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, कितने टाइम मैंने एक्चुअली पढ़ाई किया। सो द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, इट विल हेल्प यू एनालाइज कि मुझे ये चीज वापस नहीं करना है, करेक्ट है। it is a tedious task which you have to go through, it is a grilling। आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को देखोगे ना, he has this टाइम कैलकुलेशन, क्योंकि 24 घंटे मुकेश भाई के पास भी, 24 घंटे मेरे पास भी, 24 घंटे आपके पास भी है, राइट है। सो इट इज हाउ वी यूटिलाइज दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट गोल एंड प्रायोरिटी। आपके गोल सेट करो, सपोज मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आज के डेट में, तो मैं उस 3 सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करने वाला हूँ, राइट है। सो व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, आई यूज्ड टू टेक इट वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, पहले उसको खत्म करता था। उसके बाद आई यूज्ड टू टेक समथिंग वेरी प्रैक्टिकल जिसमें मेरे को नींद नहीं आए, और इवनिंग में आई यूज्ड टू टेक वेरी लाइटर सब्जेक्ट which is of my love and my interest, करेक्ट है। सो मैंने अपना प्रायोरिटी ऐसे सेट किया था कि मुझे ये चीजें फिनिश करनी, राइट। तो सेट गोल्स एंड प्रायोरिटी, एक लिस्ट बनाओ, वो गोल्स और प्रायोरिटी को अपने दीवार पर चिपका दो कि ये मेरा गोल्स है, मेरा प्रायोरिटी है, इसको अचीव किए बिना मैं दूसरा कोई गोल्स या दूसरा कोई प्रायोरिटी में मैं फोकस नहीं करने वाला हूँ। आज के डेट में क्या हो गया, इतना सारा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आपको लगता है ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, अरे जो हाथ में वो तो फिनिश करो, यू डोंट डू दैट, करेक्ट है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सेट गोल्स एंड प्रायोरिटी, स्टिक इट ऑन द पेपर, एक पेपर में लो, आपके खुद के हैंडराइटिंग में लिखो और उसको अपने दीवार पर चिपका दो। Now, batching, one of the most important tool is batching। Now, what do you mean by batching is that जब मैं batching की बात करता हूं कि आपको आपका, जैसे मैंने मेरा batching कैसे किया था, the most difficult subject I used to do early in the morning, आफ्टरनून में I used to do something practical which is comfort zone पे, खाना खाने के बाद भी नींद नहीं आए। इवनिंग में I used to do, हमारे टाइम पे इसका MICS हुआ करता था which is my favorite subject, right। so मैं इवनिंग में वो लेके बैठता था because that was a comfort subject for me। सो मैंने अपना बैचिंग जो टाइम का था उस तरीके से स्पेंड किया था, राइट। मैंने ऐसे अलॉट किया था। सो यू हैव टू डू द बैचिंग एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सपोज इफ यू आर गोइंग टू एन ऑफिस आल्सो, कि आपको कितना टाइम किसके साथ स्पेंड करना है, स्पेंड कि क्रिएट अ माइंडसेट, बिकॉज इफ यू आर गोइंग अनप्लान्ड ना, यू आर नॉट गोइंग टू टेस्ट सक्सेस, ट्रस्ट मी। आप सुबह उठ के खाली ऑफिस चले जाओगे और शाम को घर आ जाओगे, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू, trust me। And articleship is the most golden period of your life। Take the best out of it because you're meeting the top clients of your principal, you're meeting the top articles of your principal, you're meeting the top chartered accountants, you're being constantly with your principal। ये time वापस नहीं आने वाला life में। The moment you start with your own practice or with your own job, it's a whole set of struggle, correct। So enjoy your articleship, be with everybody, be with positive people is what I would say। Now batching करो, हर एक वीक में आप रिव्यू करो कि जो मैंने टाइम स्पेंड किया है, was it a productive time spent or not productive time spent, correct है। Is it clear to you guys? Limit your to-do list, do not overburden yourself। हम क्या करते हैं, हम इतना ओवरबर्डन कर लेते हैं अपने आप को कि मैं लाइव में दिन में 4 काम कर सकता हूँ, 6 काम कर सकता हूँ, बट वो होता ही नहीं है। सो लिमिट योर सेल्फ, प्लान योर सेल्फ। आज के डेट में क्या हो गया है कि प्रिंसिपल्स ऑल्सो वांट क्लियर कट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आर्टिकल कि सर ये काम मैं इतने देर में कर सकता हूँ, करेक्ट है। इफ यू आर क्लियर विद योर थॉट्स, इफ यू आर क्लियर विद द प्रोसेस फ्लो, इवन द प्रिंसिपल इज नॉट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है अंकित ने बोला है कि ये काम मेरे से सर 4 घंटे में होगा या 2 दिन में होगा, सो ही विल डू हिज वर्क, राइट है। सो यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बिल्ड दैट एटीट्यूड इन यू। अगर आप एटीट्यूड बिल्ड कर लोगे ना, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड, ट्रस्ट मी ऑन दिस, करेक्ट है। लर्न व्हेन टू डू मल्टीटास्क एंड व्हेन नॉट टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद को सीखना है कि मल्टीटास्किंग कब करना है और कब नहीं करना है, करेक्ट है। नाउ जब भी आप बोर होते हो, जब भी आप टायर्ड होते हो, टेक अ ब्रेक सो दैट यू डोंट गेट टायर्ड, राइट है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये बंदा अगर अंकित अगर 6 घंटा एट अ स्ट्रेच काम कर सकता है तो आप भी 6 घंटा एट अ स्ट्रेच काम कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी, राइट है। किसी बंदे का नेचर होता है वो हाफ एन आवर का उसको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए ही चाहिए, राइट है। सो इट इज योर नेचर, आपको खुद को समझना है। इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, यू विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर योरसेल्फ। कोई और आपको नहीं बता सकता है, ट्रस्ट मी। आपको आपका जर्नी खुद जीना है, कोई भी आपको नहीं बता सकता है।
And when you're making a schedule, do not overpack कि मैं दिन में 10 घंटा पढ़ूंगा, 12 घंटा पढ़ूंगा, 15 घंटा पढ़ूंगा. Keep a leverage of 2 to 3 hours buffer period always रखो कि ये अगर समझो कि मेरा कोई टाइम ओवरलैपिंग हो गया या मुझे कोई इमरजेंसी आ गया या मुझे नींद आ रहा है, टायर्ड फीलिंग हो रहा है, I'm not able to concentrate completely, so I can give myself a particular break and then only do it. हम लोग ओवरबर्डन कर लेते हैं अपने आप को and the end result is zero. Is it clear to you guys? Is this thing clear to you guys? मजा आ रहा है आप लोग को? Please reply in the chat box. Are you enjoying? Yes or no? If you're enjoying, write in the chat box enjoying. We'll do one activity after this. Achha, any questions you want to ask till now, you can please shoot, because we'll be starting with an activity right now. Okay. I want to do 2 activities with you right now. Right? So हम 2 activity करेंगे for 15-20 minutes, 15-20 minutes, and then we'll have a discussion again, and then we'll take it forward. Correct? So I have prepared a time management sheet which you guys can download also. So I'll just show you कि आप कहाँ से उसको download कर सकते हो. You can download my app from the Android app. आप जाके Android से Mind Mapper करके एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है. You guys can download the Mind Mapper application. What I will do is I will ठीक है, what I'll do is कैसे करेंगे इसको मैं, हाँ, I will share a link with you guys so that you guys can download it over here. Try to find Mind Mapper in the Android app. आपको मिल रहा है क्या? नहीं तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ. 1 मिनट रुकिए. I'll send you the link only directly. Wait. Just hold on. I've just stopped sharing my screen. I'm sending you the link right now. Just hold on. Just hold on. I'm sending you the link. Please hold on. Okay, I have mentioned this link over here, tiny.cc/IDT Mind Mapper Android. Spelling mistake हो गया है. It is ANDOID. It is not ANDROID. So please download this. आप ये लिंक को आपके वेबसाइट पे क्लिक, आपके गूगल क्रोम पे लिंक को क्लिक कर लो, and you'll be able to do, and you'll be routed to my application. Please do that. Can I send this link to everybody in the chat box? Send to all. Okay, I can send this link to everybody in the chat box. I've sent it to all. Have you guys received the link? Please reply.
वंस यू गो इन दिस एप्लीकेशन, आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा, स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट मेनू में। इन दैट यू गो इनटू प्रोडक्टिविटी एंड प्लानिंग। उसके अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, टाइम मैनेजमेंट। प्लीज डाउनलोड द डॉक्यूमेंट। I have sent the document in the Word file so that you can start editing yourself then and there itself. हो गया? Shall we start with the Can I attach a file over here by any chance? People are able to download it, no problem. You can. I'll give you 2 more minutes to download it. I'm sending the link once again. चलो let's start with the session now quickly because दो हमको productivity tool समझना है which will help you understanding कि हमको करना क्या है, किस तरीके से हम जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं। राइट है? ये सेशन ज्यादा ज्ञान वाला नहीं है, इट इज मोर ऑफ अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन विच इज ऑल्सो नीडेड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बार क्या होता है हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। और मैं ये आपको इसीलिए रियल टाइम करा रहा हूँ बिकॉज इस सेशन के बाद भी आप कभी लाइफ में नहीं करने वाले, राइट है? सो व्हाट यू डू विथ मी राइट नाउ इज व्हाट यू हैव डन, करेक्ट है? दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग एन एफर्ट टू गेट इट दिस थिंग डन राइट नाउ विथ यू। सो इवन आई विल ओपन दैट शीट विथ माई सेल्फ एंड यू विल ऑल्सो डू दैट शीट विथ योर सेल्फ। आपका शीट ओपन हो गया है? चलें स्टार्ट करें। It's already 119. Okay, we'll start at 121. I'll give 2 more minutes for people to download it. जब तक जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है, they can see what is there in that particular sheet. If you all are mature enough, if you think you can answer those sheet yourself, start answering those questions yourself. जब आप ऐप डाउनलोड करोगे लेफ्ट साइड में आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा। वो स्टडी मटेरियल के अंदर आप जब जाओगे आपको फ्री डाउनलोड्स मिलेंगे। उसके अंदर आप जाओगे, प्रोडक्टिविटी एंड प्लानिंग टूल होगा और प्रोडक्टिविटी प्लानिंग टूल के अंदर आपको वो चीज मिल जाएगा। आई डोंट नो हाउ कैन आई शेयर एनी फाइल ओवर हियर, मुझे नहीं पता चल रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव शेयर्ड द फाइल हियर इटसेल्फ। Once you download the app, please go on to the left menu. लेफ्ट मेनू में जाके आपको स्टडी मटेरियल दिखेगा। प्रोडक्टिविटी एंड प्लानिंग के अंदर जाओगे, आप वो शीट को डाउनलोड करोगे।
Everybody ready with the file? Please reply in the chat box. Yes, ready. अगर ready हो तो quickly reply ready. और नहीं भी हुआ है तो आपके पास notebook तो है ही. You can start writing in the notebooks the way I am doing it. मैं खुद भी लिखूंगा. मैंने खुद भी बहुत टाइम से इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया खुद को. Let me also do it with you right now. Correct? Even I keep on doing this activity on a monthly basis so that I am in sync with what I am doing. चलो. I hope you guys can see my screen. हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? The word file is visible to you guys. चलो, let us start solving this question answer quickly. We will just take it's 121, so we'll finish it by say 135. 15 मिनट का टाइम हम खुद को दे रहे हैं. We'll start solving this series of questions so that you understand what you're trying to do over here. Correct है? So here take control of your time. It's a time sheet what we're trying to solve over here. अगर आपके पास ये sheet open नहीं हो रहा है, take a pen paper, start writing with your pen paper. जो questions आप start writing करो, चलेगा? Don't waste your time now. चलो, now write down 10 top activities you spend your time on every day and how long each one takes. Right है? आपको आपके 10 एक्टिविटी लिखने हैं जो आपका टाइम मैक्सिमम स्पेंड कर रहे हैं. राइट? सो आई विल स्टार्ट राइटिंग माय दिस थिंग. You guys can see what I'm writing. Can you guys see what I'm writing? चलो, आपका खुद का लिखना स्टार्ट करो. राइट है? स्टार्ट राइटिंग इट क्विकली. डोंट वेस्ट टाइम. आपको खुद का आपका टाइम लिखना. 10 एक्टिविटी नहीं है तो 5 लिखो, 5 नहीं तो 7 लिखो, जितना आपके पास आता है आप लिखो. तो निकित सर. यस सर, बोलिए. सर क्या कुछ प्रॉब्लम? नहीं चालू है, लोग काम कर रहे हैं. ओके. शीट शेयर किया है, दे वर्किंग ऑन दैट शीट. I hope you guys are working on the sheet. Please reply in the chat box if you guys are working on the sheet. Second question is write down your top 3 priorities for this month.
how much time will they take on a typical day? For example, studying 5 hours a day. अगर आपका एग्जाम्स नियर बाय हैं तो आपके लिए प्रायोरिटी हो जाएगा स्टडीज. If your audits are nearby, your GST audits are nearby, your priority will be finishing the GST audits. If your income tax audits are nearby, your priority will be the income tax audit, right? So आपको 3 आपके priorities लिखने इस मंथ के अंदर. That means ये 3 काम के अलावा आपका फोकस किधर भी और deviate नहीं होना चाहिए, right है? So these are the 3 priority things which you have to do. Are you guys able to understand? Suppose my priority for this month is GST audits. Second is GST notes for CA final. And third is basically finishing income tax returns for the clients. So मेरा ये जो टाइम है इसके अलावा मेरा टाइम इस महीने में और कहीं भी स्पेंड नहीं होना चाहिए, राइट? एंड दिस ऑल्सो हैव टू बाइफरकेट कि अगर मैं जीएसटी ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे दिन में कितना घंटा उसमें देना है. सपोज आई एम गिविंग 3 hours फॉर जीएसटी ऑडिट, notes for CA final, if I give say 3 to 4 hours, and finishing the income tax returns for the client, again it will take me 3 hours. Now tell me one thing, इससे ज्यादा 10 घंटे से ज्यादा 12 घंटे से ज्यादा क्या मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? इट इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट है? सो दिस विल गिव मी क्लैरिटी ऑफ थॉट कि बॉस मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ. क्लियर है? Third thing is write down the things you currently do on a typical day but want to stop doing and how you will do it. So you can also put a time limit to some of this task, right? बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं which will give you restriction कि आपको ये ऐप 30 मिनट्स देखना है, 25 मिनट्स देखना है, 1 hour देखना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ऐप ही बंद हो जाएगा. इट विल नॉट गिव एन एक्सेस, राइट? सो प्रिपेयर दिस आल्सो, विद दिस आल्सो यू गाइस शुड प्रिपेयर, करेक्ट है? देन टू डू लिस्ट आपको बनाना है, टाइम ब्लॉकिंग आपको करना है कि मैं सुबह 8 से 10 किस में क्या काम करूंगा, 10 से 11 क्या काम करूंगा, 11 से 12 क्या काम करने वाला हूँ. वीकली आई हैव टू डू एन ओवरव्यू, एवरी वीक आई हैव टू डू एन ओवरव्यू कि ये मैंने टारगेट किया था, ये अचीव हुआ कि नहीं अचीव हुआ. देन बैच डेज, आई हैव आल्सो टोल्ड यू दैट मंडे को मैं ये काम करूंगा, ट्यूसडे को वो काम करूंगा, वेडनेसडे को ये काम करने वाला हूँ. देन वीकली रिव्यू, इज द जॉब, am I happy with my result or not, and try again next week. अगर कोई deficiency रह गया तो I'm going to try again in next week or not. Write down 3 wins from this week. ये हफ्ते में मैंने क्या 3 चीज अचीव की, that is what you have to write here, right? What task did you procrastinate? Very very important. What task did you procrastinate on and why? आपने ये procrastination क्यों किया is very important for you guys to answer, right? है अगर आपने कोई चीज को procrastinate किया है तो क्यों किया is very important. आपको इस चीज का ही solution ढूंढना है. Did I stick to my habits or priorities this week? जो मैंने ऊपर मेंशन किया था, क्या मैं हैबिट्स और प्रायोरिटीज पे रहा या मैंने डिविएट कर लिया, या हैव चेंज माय थॉट प्रोसेस, करेक्ट है? दिस इज आल्सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. हाउ विल आई इंप्रूव द नेक्स्ट वीक? मैं नेक्स्ट वीक में अपने आप को कैसे इंप्रोवाइज करूंगा, जो मेरे इस वीक में फॉल्ट्स हुई हैं उसको मैं कैसे इंप्रोवाइज करूंगा. टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस शीट, follow this sheet regularly, rigorously. आपको बहुत मजा आएगा. It will give you eye opener for you and you will learn a lot of stuff from this particular. इसका एक फाइल बना लो एवरी वीक का, ये वीक में मैंने ये काम किया, ये वीक में ये काम किया, ये वीक में ये काम किया, राइट है? ये मेरा फेलियर था, यहाँ से मैंने इसको अपग्रेड किया अपने आप को. इट इज एन अपग्रेडिंग लाइफ साइकिल फॉर यू गाइस, राइट? जब आप खुद ये इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा. यू विल नेवर फील डिप्रेस्ड, यू विल नेवर फील सैड. You will always be in a cheerful mood. You will start finding the right people whom you want to be. Ultimately everything boils down to your own आप कैसे खुद को evaluate करते हो, correct? This you have to do as a homework for me, and once you finish that you can share this with me on the WhatsApp. I've already shared my number with you guys. आप WhatsApp पे मेरे साथ share कर दो इस चीज को कि sir this is what we have done, and I'll give my feedback whenever I get time on that, right? So that is what is from this particular thing. Now let me take you through one of the application which I use and which everybody should use in this world where lot of database is available. जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, राइट? नाउ सपोज इफ यू स्टडिंग, राइट? अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप ऑडिट में हो, राइट? आपने पर्टिकुलर आइडेंटिफाई किया कि मेरे को रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे करना है. नाउ व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग ऑन गूगल, हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल में जाकर हम सर्च करते हैं. व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग ऑन गूगल, मेरे को इतने सारे लिंक मिलते हैं. वो लिंक में से मैं क्या करता हूँ कि मेरे को 2 लिंक अच्छे लग रहे हैं, बाकी मैं
उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, अभी पढ़ूंगा या बाद में पढ़ूंगा, राइट है। नाउ द मोमेंट यू आर डन विद दैट, आपका लिंक किधर जाता है आपको पता भी नहीं चलता, राइट। दैट इज वन एस्पेक्ट। नाउ यू गाइस आर स्टडिंग ऑनलाइन, अभी आज के डेट में वो ऑनलाइन स्टडीज का बहुत ट्रेंड चल गया है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड नाउ बिकॉज the way corona has affected everybody of us, we know that the next thing is going, everything is going digital. So it is very important to manage all your database on the internet, right है। क्या होता है कि हमने कोई फाइल को डाउनलोड कर लिया, हमने हमारे सिस्टम के अंदर फोल्डर बना लिया, लेकिन जब चाहिए होता है ना, वो पर्टिकुलर फाइल कभी लाइफ में नहीं मिलता है। सपोज इफ आई वांट टू रीड समथिंग ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैंने कभी डाउनलोड किया था, अगर मुझे उसको वापस पढ़ना है तो मुझे मेरे फाइल में ढूंढने में ही प्रॉब्लम होता है। हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ फाइल मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, फेसिंग प्रॉब्लम। See, it's a problem with everybody. हाँ, we chartered accountants also do this way. हमको मिलता ही नहीं है, आर्टिकल को भी नहीं मिलता है, क्लाइंट को भी नहीं मिलता है। It's a problem with everybody in life, right? So recently I've started using an application called Notion. So I don't know how many of you have known about it or heard about it, but I just give you a glance of what this Notion, कि आपको उसके अंदर कैसे सब चीज एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। इट्स अ मास्टर डेटाबेस फॉर यू थ्रू आउट योर लाइफ। एक बार आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया ना, then it will become very, very simple for you. I'll take you to the Notion website or Notion app also. One second. This is the Notion app which I use. Are you guys able to see my Notion app? So Notion app is basically is keeping a collection of everything what you have, correct है। So आप इसके अंदर जाके आपका खुद का नोट्स बनाना है, खुद का आपको रिपोजिटरी बनाना है, डेटाबेस रिपोजिटरी बनाना है, everything you can make in this Notion app itself, right है। So quickly go on this here particular Notion app. One second. राइट है, यू हैव टू क्रिएट वन नोशन ऐप। आप इसको जाके आप एक नया नया टास्क क्रिएट करोगे, राइट। सो यू कैन राइट, सपोज इफ आई वांट टू प्रिपेयर सम जीएसटी नोट्स, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा जीएसटी नोट्स, राइट है। नाउ अंडर दिस जीएसटी नोट आई कैन ऐड एन आइकन आल्सो टू मेक इट मोर क्रिएटिव। मैं इसको आइकन दे सकता हूँ, आइकन को मेरे को चेंज करना है, आई कैन चेंज द आइकन, आई विल से टैक्स। सपोज ये टैक्स के रिलेटेड मैंने डॉलर डाल दिया तो इसका डॉलर आ जाएगा, राइट। आई कैन ऐड अ कवर आल्सो ओवर हियर। Suppose I want to change the cover, I can say Unsplash and I can say tax returns. Suppose it will make me feel little good to go about it, right है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर मैं जाके क्या करता हूँ, पहला मेरा चैप्टर है सप्लाई का, दूसरा मेरा चैप्टर है सपोज कि आईटीसी का, तीसरा है मेरा रिफंड्स का, राइट है। नाउ आई हैव टू फिनिश ऑल दिस स्टफ्स इन माय डेली वर्क, करेक्ट है। नाउ if suppose it is similar to Evernote, it is much more better than Evernote, so try it, आपको बहुत मजा आएगा। नाउ एवरीथिंग, अभी इसको मेरे को क्या करना है, सपोज इफ आई वांट टू मेक दिस एज अ, अभी इसको मैं बना दूंगा टर्न इनटू अ पेज। इसको मैंने पेज बना दिया, तो ये क्लिकेबल हो गया। इसके अंदर मैं जाऊंगा, नाउ इट इज अगेन नेक्स्ट पेज फॉर मी। इट इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग योर ओन वेबसाइट, ओन रिपोजिटरी। नाउ इसके अंदर मैं जाके मैं लिख सकता हूँ कि सप्लाई के अंदर मुझे क्या करना है, राइट है। नाउ सप्लाई के अंदर मैंने इट्स इसके अंदर इनबिल्ट कमांड्स भी हैं, राइट। अगर मुझे इसके अंदर कुछ चीजों को जाके वो करना है, ब्रेड ब्रेड, वन सेकेंड, let me just show you this heading 1, heading 2, bullet, number, toggle. Even I am exploring this, so even I'm learning a lot of things into this every day. There was one code, one second, yes, मुझे दिख नहीं रहा है अभी। So basically what we can do over here is that supply के अंदर मैं देख लिया कि supply of goods क्या है, supply of services क्या है,
Now, if I want to do something on supply of goods, मैं इसके अंदर जाऊंगा. I'll make it as a page once again. I'll click on this page. इसके अंदर मुझे कुछ भी चीज ऐड करनी है मैं ऐड कर सकता हूँ. सपोज इफ आई वांट टू ऐड अ वेब लिंक, अगर मेरे को कोई यूट्यूब में वीडियो अच्छा लग रहा है, राइट है, तो आई कैन ऐड अ यूट्यूब का लिंक ऑल्सो हियर, लिंक टू अ पेज, राइट. आई कैन ऐड अ लिंक टू अ पेज. वन सेकेंड, कहाँ गया, यहाँ पे मैं जाऊंगा. I can insert table, board, gallery, list, calendar, database, video. Suppose if I want to insert a video. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैं अपना वीडियो का लिंक इसके अंदर एम्बेड कर दूंगा. Now how do I do this? Suppose if I open my YouTube. One second, let me open the YouTube. Notion, Notion. Notion is the name of the app. If I go on YouTube, I search IDT Mind Mapper. Okay. सपोज अगर मुझे ये इसको मेरे को लिंक कॉपी करना है, कॉपी लिंक एड्रेस, क्या होता है कि इतने सारे डिटेल मिलते हैं, हमको पता नहीं चलता कि कौन सा है, राइट है. आई एम्बेड दिस ओवर, एम्बेड दिस वीडियो. सो आपको इसी के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, करेक्ट है. यू नीड नॉट गो ऑन जंपिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एन एप्लीकेशंस. करेक्ट है. नाउ इसके अंदर बहुत सारे आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं. यू कैन एक्सप्लोर, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस. तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, क्लास नोट्स, सपोज देयर लॉट ऑफ टेम्पलेट्स व्हिच आर मेडली अवेलेबल. एजुकेशन के लिए क्लास नोट्स दिए गए हैं. यू कैन स्टार्ट प्लानिंग योर नोट्स. कैसे करना है इसके अंदर देखोगे, आप देखोगे कि आपका नाम क्या है, टॉपिक का, क्लास कौन सा है, टाइप कौन सा है, उसके लिए मटेरियल आपने कहाँ कहाँ पे सेव किया है. सो ऑल दिस थिंग इज व्हाट यू कैन डू, and this is what you can basically start creating or use. You can use this template, you can plan everything. So I would request you guys, please go through this Notion application. इसके दो चार वीडियोस देखो और try to understand. This will help you sort out a lot of your life problems. और because we are moving into the content world, digital world, it is very important that you organize your data very well, right? So this is what from my side. Yes, it is downloadable. It is downloaded. It is downloadable on the mobile app, Android app, iOS app, wherever you want to do, you can download it. You can sync it everywhere. This, I would say, please go and review this app, because this is going to be one of the best apps. You will be using it throughout your life, because जिस तरीके से हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं ना, हमको उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट है. This is what is there from my end. Any questions if you want to ask, you can write, you can shoot the questions to me right now, so that we can start taking the question answer in the next last 20 minutes, 15 minutes, right? Any question? Start. I am ready to answer any question, be it any kind of thing. Technical हो गया, आपको कुछ समझना है, क्या करना है. Good books on productivity के ऊपर आप there is one book which I am reading something called as mind mapping. तो मैं अभी वो read कर रहा हूँ. Start viewing some productivity videos. ये Notion के videos देखो, you'll understand कि productivity क्या है, and you can start working also simultaneously. पढ़ने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा, राइट है. तो आपका जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढो. दैट इज व्हाट यू लर्न. एनी अदर क्वेश्चंस?
how to remember so much of things. You cannot remember so much of things. That's why I told you, please